चलिए करते हैं। कंपोजिशन लेवाई इज अंडर विच सेक्शन? 9, 10, 5, none of the above. Which of the following persons can opt for composition levy assuming other conditions are satisfied? Manufacturer, trader, food supplies या all of the above? All of the above. Which of the following persons cannot opt for composition levy assuming his manufacturing business is located only in the state of Gujarat? Registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year was nil cannot opt. Registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year was 30 lakh. Registered person whose aggregate turnover in preceding financial year did not exceed 1 crore. Unregistered person whose aggregate turnover in the preceding financial year was 19 lakh. बताइए। देखिए, कंपोजिशन लेवाई सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही जा सकता है। और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, रुकिए। मेरा टर्नओवर 15 लाख है। 15 लाख में नहीं, 8 लाख, 8 लाख, और मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूं, नॉर्मल स्कीम या कंपोजिशन स्कीम? बोलिए। 8 लाख है तो वॉलंटरी होगा। नॉर्मल भी जाऊंगा, कंपोजिशन में क्यों जाऊंगा? मुझे तो यह क्रेडिट के कारण ही करवाऊंगा, और तो कोई कारण हो नहीं सकता। तो जब भी जाऊंगा नॉर्मल जाऊंगा। तो अगर मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है नहीं, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, तो मैं नॉर्मल में जाऊंगा। कंपोजिशन में जाने का मेरा कोई शौक है नहीं। कंपोजिशन में जाने का 6% मुझे अपने पॉकेट से भी देना पड़ेगा, आईटीसी भी नहीं मिलेगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और सेक्शन 10 क्या कहता है? ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। Which of the following person cannot opt for composition scheme? Whose aggregate turnover in the preceding financial year was nil? वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाएगा, तो कंपोजिशन में जाने का सवाल ही नहीं उठता। 30 लाख है, मैंने कहा स्टेट ऑफ गुजरात है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 40 लाख की लिमिट है, तो ये भी नहीं जाएगा। ये 1 करोड़ है, यहां जाएगा, तो इसका आंसर आएगा सी। आया? ये एकेडमिक क्वेश्चन था। Which of the following persons cannot opt for composition levy assuming he is a chartered accountant in practice in the state of Jharkhand? Cannot. His aggregate turnover in the preceding financial year was 40 lakh. His aggregate turnover in the, जा सकता है या नहीं जा सकता? बताइए ए में। अरे बोलिए। चार्टेड अकाउंट है तो 50 लाख की लिमिट है। अब तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A है, तो जा सकता है। His aggregate turnover in the preceding financial year was 30 lakh, जा सकता है। His aggregate turnover preceding financial year 95 lakh, ये नहीं जा सकता। और ऑल ऑफ द अबव, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा? कौन नहीं जा सकता? सी नहीं जा सकता। आया? क्वेश्चन 5। Which of the following statement? A trader business located in Uttarakhand to be eligible in composition scheme, his aggregate turnover in the preceding financial year should not exceed 75 lakh. बताइए उत्तराखंड में लिमिट क्या है? उत्तराखंड की लिमिट क्या है कंपोजिशन में जाने के लिए? 75 लाख है या 1.5 करोड़ है? 75 लाख है, तो ये ट्रू है।
A manufacturer business located in Jammu and Kashmir to be eligible in composition scheme, his aggregate turnover in the preceding financial shall not exceed 1 करोड़. तो ये 1.5 करोड़ कर देते हैं. जम्मू एंड कश्मीर की लिमिट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर की लिमिट 75 लाख है या 1.5 करोड़ है? है 1.5 करोड़. तो ये भी ट्रू है, तो बोथ ट्रू. Question 6. A person registered under composition levy shall pay following taxes: S, C, C, S या U या I. कौन सा? आसान है एकदम. C. A person registered under composition levy shall also pay following taxes. Also pay following taxes: reverse charge on services, reverse charge on goods, reverse charge on goods or services, all of the above. D. The threshold limit of turnover in the preceding financial year for opting to pay tax under composition other than specified state is 1.5 crore. ठीक है. What is the threshold limit of turnover in the preceding financial year to be eligible for composition levy in Delhi? ये तो आसान है, 1.5 crore. The threshold limit of turnover in the preceding financial year for opting for paid tax under composition in this Manipur. $75 lakh. The turnover limit of 75 lakh for composition scheme is not applicable to the state of. Not applicable to the state of. हिमाचल प्रदेश में लिमिट क्या है? हिमाचल प्रदेश में ₹1.5 करोड़ की लिमिट है. मैं जो देख रहा हूं मुझे 1.5 करोड़ नजर आ रहा है. तो हिमाचल 1.5 है, असम भी 1.5 है, उत्तराखंड में 75 लाख है. नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ ए एंड बी. दो आंसर है इसका. What is the rate applicable to registered person being a manufacturer opting to pay tax under composition levy with effect from 1st January 2018? देखिए ये तो निश्चित है 0.5 प्लस 0.5 है. अब ये टैक्सेबल टर्नओवर है या सिर्फ टर्नओवर है मैन्युफैक्चरर के लिए? बताइए. आपको याद होगा मैंने बताया था मैन्युफैक्चरर के लिए सिर्फ टर्नओवर है. वो टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों में देगा. टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों में देगा. कहाँ गया? ये देखिए. ठीक है. What is the rate applicable to registered person being a manufacturer? दो बार क्यों है? ये हटा लीजिए. 2 बार करने की जरूरत क्या है? ट्रेडर का बता दीजिए. ट्रेडर का क्या है? ट्रेडर का 0.5 प्लस 0.5 ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. तो ये 1% नहीं है. आंसर क्या आएगा? 0.5 ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर. इसको हटाते हैं. फूड सप्लाई के लिए रेट क्या है? फूड सप्लाई के रेट
5% है तो 2.5 2.5. 17. Can a registered person opt for composition scheme only for one out of his 3 business having same permanent account number? No. Mr. A is having business at Rajasthan and Delhi. His aggregate turnover in financial year of each business is 60 and 50. Comment whether he can opt for composition scheme for each of his business. राजस्थान में कंपोजिशन, दिल्ली में रेगुलर, ऐसा पॉसिबल है? दोनों कंपोजिशन? दोनों कंपोजिशन. 19. Can composition scheme be availed if the registered person affects interstate supplies of goods? No. Can a registered person under composition scheme can claim input tax credit? No. Can a registered person opting for composition scheme collect tax on his outward supplies? या उसको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा? अपने पॉकेट से देना पड़ेगा. नो. XYZ लिमिटेड इज सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ गुड्स का टर्नओवर 40 लाख है एज वेल एज सर्विसेज 40 लाख है. ही कैन ऑप्ट फॉर composition scheme in respect of supply of goods, supply of services, supply of goods as well as services, neither for supply of goods nor supply of services. Actually है ना, ये क्वेश्चन को हमें ये करना चाहिए. He can opt for composition in respect of 10(1) लिखता, 10(2)(a) लिखता. और मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो हमने हेडिंग दी है ना कंपोजिशन, ये हेडिंग कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर, ये हेडिंग ही गलत लग रही है मेरे. ये क्योंकि इसमें अगर गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों है, इसमें गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों है, तो हेडिंग शुड बी चेंज्ड. आई थिंक आपको अच्छा हेडिंग सजेस्ट करना, या फिर मैं ये लिखूं कंपोजिशन स्कीम फॉर अदर देन मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड फूड सप्लायर. ये भले लिख देता हूं. अदर देन मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, ये भी नहीं लिख सकता क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी इसमें आ सकता है. चलिए मैं सोच के इसका लिख दूंगा, सोच के लिख दूंगा मैं. तो यहां पर या तो मैं रेट डालूं, ही कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम एंड शैल पे टैक्स एट द रेट ऑफ 1%, 2%, 5%, 6%. तो ये बेस्ट हो जाएगा. तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. तो हम लोग यही करेंगे. ठीक है, तो आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, 1, 2, 5 या 6? ओह, इट हैज क्रॉस्ड 40 plus 20. इट हैज क्रॉस्ड, यस, 60 लाख. तो ये अच्छा है, हम लोग ऐसा 2 क्वेश्चन बना देंगे. 60 लाख हो गया है, तब तो वो कंपोजिशन में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? यस. मैन्युफैक्चरर वाले में भी नहीं जा पाएगा. क्यों? क्योंकि 10% एक्सीड कर रहा है. तो ये जब भी जाएगा नॉर्मल स्कीम में जाएगा. ये जब भी जाएगा नॉर्मल स्कीम में जाएगा. थैंक यू फॉर द करेक्शन. 26. Which of the following persons cannot opt for composition scheme? कौन ऑप्ट नहीं कर सकता? कौन ऑप्ट नहीं कर सकता? All of the above. Which of the following persons cannot opt for composition scheme? Manufacturer and trader of alcoholic liquor for human consumption, refiners and traders of petroleum products, manufacturer of mobile phone 50 lakh and supplier of service 30 lakh. All of the above. All of the above. 27. फटाफट आंसर दीजिए प्लीज. Which of the following persons cannot opt for composition? Manufacturer and trader for alcohol liquor for human consumption, ये नहीं कर सकता. Refiners and traders of petroleum products, ये भी नहीं कर सकते, नॉन लेवाई सप्लाई है. मैन्युफैक्चरर मोबाइल फोन, सप्लायर ऑफ सर्विस, ये तो कर सकता था, लेकिन एक तो 10(2)(a) में नहीं जाएगा क्योंकि 50 लाख से ज्यादा है, और
लिमिट में तो है, लेकिन सर्विस इज मोर देन 10% ऑफ 5 लाख विच एवर इज हायर, तो कोई भी नहीं जा सकता। Which of the following persons can opt for composition scheme? Regular person, CTP, NRTP, all of the above. कौन कर सकता है बताएंगे? Only regular person, casual taxable person और NRTP opt नहीं कर सकता। A person opting for composition scheme pays following taxes: tax on outward supplies at reduced rates, tax on reverse charge, tax on outward supply at normal rates, both A and B. परिमल जी प्लीज, बोथ ए एंड बी, क्या आंसर होगा? ए पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम पेज फॉलोइंग रेट्स, तो आंसर है बोथ ए एंड बी। What will happen if the turnover of a registered person opting to pay tax under composition scheme during any financial year, इसको हटाते हैं, crosses the threshold limit? What will happen if the turnover of a registered person opting to pay taxes under composition scheme during any financial year crosses the threshold limit? बताइए क्या होगा? वो कंपोजिशन में रह पाएगा या कंपोजिशन से उसको बाहर आना पड़ेगा? कंपोजिशन से बाहर आना पड़ेगा। He can continue under composition scheme till the end of the financial year. No, उसको तुरंत बाहर आना पड़ेगा। Within 7 days he has to file the form. He will be liable to pay tax at normal rates of GST on the entire turnover of the financial year. Wrong. He will cease to remain under the composition scheme with immediate effect. This will be the answer. He will cease to remain under the composition scheme from the month following the month in which the aggregate turnover, ये भी wrong है, तो C is the answer, 30C. परिमल जी प्लीज पार्ट लीजिए या कहीं चले गए हैं? Mr. Jet was in composition scheme for the financial year 17-18. On 1st December 18, his aggregate turnover exceeds threshold limit. Comment by which dates specified form should be filed electronically. CMP 5, ये तो रिप्लाई है 4 ही करना है हमें। अब 4 कब? 1 दिसंबर 2018, 7 दिन के अंदर, तो बाय 8 दिसंबर 2018। Question 32. A supplier registered under section 10, his aggregate turnover crosses the threshold limit on 7th August 2018. कोई बात नहीं शर्मिला जी, करते हैं हम लोग। A supplier registered under section 10, his aggregate turnover crosses the threshold limit on this, advise him. तो वो CMP 04 30 डेज के अंदर फाइल करता है। अगर मेरा टर्नओवर crosses the threshold limit on a certain date, then I have to file CMP 04 within 7 days. इमीडिएट इफेक्ट से आता तो विदिन 7 डेज, तो ये 30 डेज तो रॉन्ग है, तो उसको मैं छोड़ देता हूं। अब अगर आप देखेंगे तो BCD में सब में 7 डेज लिखा हुआ है, तो BCD का आंसर होगा। उसके बाद कहता है कि ITC जो फॉर्म फाइल करना होता है, ITC 01, क्योंकि वो क्रेडिट क्लेम करेगा, दैट शुड बी फाइल्ड विदिन, ITC 01 शुड बी फाइल्ड विदिन 60 डेज या 30 डेज। ITC 01 मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे जहां तक याद आ रहा है वो 30 डेज है। कितने दिन है बताएंगे आप? ITC 01 30 डेज है। और 30 डेज कब से? 1 अप्रैल से या 7 अगस्त से? फर्स्ट अप्रैल से है। कहां लिखा हुआ है? हमने कहां लिखा हुआ है? मिला आपको?
चलिए, तो फ्रॉम 7 अगस्त है, 1 अप्रैल नहीं है, 7 अगस्त, ठीक है। तो यू शैल फाइल ITC 01, तो फाइल within 30 days as on stock standing, file form ITC 01 within 30 days from this, file ITC within 30, सब में सेम है, सब में सेम है। फिर इशू टैक्स इनवॉइस विथ इफेक्ट फ्रॉम 7 अगस्त, इशू टैक्स इनवॉइस विथ इफेक्ट फ्रॉम, इशू टैक्स इनवॉइस 14 अगस्त यहाँ। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर। इसमें अलग क्या है, 7 days from this, file form ITC 01 within 30 days from 7th August to claim ITC as on stock standing on 7th August. File form ITC 01 within 30 days from 7 to claim ITC as stock. दोनों ही सेम है ना, तो इसमें बी दोनों सेम है, करेक्ट है, बी और सी दोनों सेम है। बोथ आर सेम, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग कर देंगे, थोड़ा सा अलग कर देंगे और इसको ठीक करेंगे, तो बी और सी में कोई एक आंसर होगा। क्वेश्चन 34, a supplier registered under section 10, his aggregate turnover do not crosses the threshold limit, still he wants to opt to register under section 22 voluntarily, advise him. A supplier registered under section 10, his aggregate turnover do not crosses the threshold limit, still he wants to opt for registered under section 22 voluntarily. एक बात बताइए, अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर सिर्फ 15 लाख है तो मैं कंपोजिशन में तो कभी नहीं जाऊंगा, करेक्ट या रॉन्ग? कंपोजिशन में कभी नहीं जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि हमें ये क्वेश्चन को, सॉरी, इस क्वेश्चन को छोड़ ही देना चाहिए, ये कोई डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। फिर वही है 35 वैसा ही है। मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर, अच्छा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हिज एग्रीगेट टर्नओवर डू नॉट क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड लिमिट इन अ फाइनेंशियल ईयर, एडवाइस हिम। इसको चेंज करना होगा, ए सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर, ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम in spite of the fact that his aggregate turnover do not crosses the eligible limit, कर देते हैं इसको, है ना, eligible limit, ये सही रहेगा। एलिजिबल लिमिट मतलब 75 लाख, 1.5 करोड़ या 50 लाख। और ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं हमने क्या गड़बड़ की। हाँ ये तो ठीक है, इसका आंसर बताइए। यानी कि बेसिकली ये पूछ रहा है नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं, नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम जाने के लिए कौन सा फॉर्म है? CMP 02 है, CMP 02, ये CMP 02 फाइनेंशियल ईयर के कमेंस होने से पहले भरना होता है, तो अगेन ए नहीं होगा, 1 अप्रैल 2018 को भरेगा तो नहीं होगा, तो जब भी भरेगा फाइल फॉर्म CMP 02 प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो बी, सी या डी में कोई होगा। फिर क्योंकि वो कंपोजिशन में जा रहा है, उसके पास जो ITC पड़ा हुआ उसको रिवर्स करना पड़ेगा या कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ITC 03 भरेगा। ITC 03 का नंबर ऑफ डेज कितना था, 60 डेज था या 30 डेज था? ITC 03 60 डेज था, मुझे जहां तक याद आ रहा है ना। ITC 01 30 days from the date he becomes eligible, और ITC 03 60 days।
ठीक है, 60 डेज है। तो 60 डेज कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, दोनों सही है। अब इनवॉइस, यहाँ भी सी और डी दोनों सेम है, तो सी और डी में कोई एक आंसर होगा, मतलब कोई दोनों सेम है। एम आई करेक्ट? सी और डी दोनों सेम है। चलिए इसको भी चेंज करेंगे फिर। क्वेश्चन 36, एज पर रूल 6(4) प्रॉपर ऑफिसर कैन इश्यू शोकॉज नोटिस इन फॉर्म 5 if he has reason to believe या reason to suspect, यहां लिखा हुआ है रीजन टू बिलीव, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन 37, as per rule 6(4) the registered person has received a notice that he was not eligible to pay tax under section 10 or has contravened the provisions of composition scheme. The registered person shall reply to this show cause notice in form dash within dash days of the receipt of such notice. कौन से फॉर्म में रिप्लाई करेगा? 6 कितने दिन के अंदर? 15 डेज के अंदर, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन 38, एज पर रूल 6(5) the proper officer has received a reasoned reply from the registered person that he was eligible to pay tax under section 10 or has not contravened the provisions of composition scheme. Proper officer shall issue an order in form within तो फॉर्म 7 है, फॉर्म 7 और लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, तो यहाँ पर हमने 30 और 60 डेज लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर नो लिमिट, तो हमें एक लिखना चाहिए था नो लिमिट का भी एक ऑप्शन। ठीक है, तो 7 डेज रिप्लाई कर 7 डेज किस चीज का है? 7 डेज CMP 07 परिमल जी, अच्छा परिमल जी का तो कॉन्सेप्ट वो दूसरा ही केस था। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर बाय इशूइंग एन ऑर्डर इन CMP 07 can accept the reply, deny the option under section 10. Proper officer by issuing an order in CMP 07, यानी कि ऑर्डर में वो लिखेगा कि मैं आपका रिप्लाई एक्सेप्ट करता हूं या फिर मैं सेक्शन 10 का आपको बेनिफिट नहीं दूंगा। डिनाई द ऑप्शन अंडर सेक्शन 10 फ्रॉम द डेट ऑफ कंट्रोवेंशन, डिनाई द ऑप्शन अंडर सेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑप्शन, एनी ऑफ देम। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या रेट्रोस्पेक्टिव डिनाई कर सकता है या नहीं कर सकता? बेसिकली यही, या एनी वन ऑफ देम आंसर। इट विल बी एनी वन ऑफ देम। तो प्रॉपर ऑफिसर या तो जिस दिन ऑर्डर पास कर रहा उस दिन से वो कहेगा या फिर रेट्रोस्पेक्टिव कर सकता है, लेकिन जिस दिन कंट्रावेंशन हुआ है जिस दिन, उसके पहले का वो ऑर्डर पास नहीं कर सकता। मिस्टर जेड वाज अर्लियर रजिस्टर्ड एज ए वैट डीलर, कमेंट बाय विच date specified form should be filed electronically to opt for composition scheme under section 10. Comment as per rule 3(1) ignore the dates extended by notification. तो उसको बेसिकली CMP 01 फाइल करना चाहिए था, और CMP 01 कब तक फाइल करता? 31 जुलाई या 21 जुलाई? 21 जुलाई बाय अपॉइंटेड डेट, बाय अपॉइंटेड डेट, यही था ना? तो अपॉइंटेड डेट वाज 22 जून और वहां से मैं 30 डेज काउंट करूंगा तो वो 21 जुलाई तक वो कर सकता था। ये आंसर होगा। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a person registered under composition scheme can affect interstate supply, interstate purchases, yes or no?
Yes, a person registered under composition scheme can affect interstate sales. False. The false or true? उफ, चलिए आखिरकार ये हो ही गया.